नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोये सव्व साहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासणो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद निज स्वभाव से सदगुरु निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है गुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वंद्य है सत्यम निश्चय वंद्य है 33 कोटि दैवगण 33 कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहितार्थे स्वागतम् जगकल्याणक यज्ञ में जगकल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम् मंगलमय द्यो आशीषम् सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफ
માફી દો. ગલતી ભૂલ કો માફી દો. વ્યવહારે સદબુદ્ધિ હો. વ્યવહારે સદબુદ્ધિ હો. નિશ્ચય મેં અભિવૃદ્ધિ દો. નિશ્ચય મેં અભિવૃદ્ધિ દો. જય સચ્ચિદાનંદ. 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 હવે આપણે આપતા પુત્ર શ્રી કમલેશ આનંદજીનો સત્સંગ સાંભળીશું. કમલેશ આનંદજી દાદા ભગવાનની સાથે ખૂબ રહેલા છે. જબરજસ્ત એમનું સાનિધ્ય કેળવ્યું છે અને એમની જે વિજ્ઞાનની વાતો છે, વૈજ્ઞાનિક વાતો છે, એ એક ઘા અને બે કકડા જેવી હોય છે. એમાં સેજે આઘું પાછું નહીં, એક ઘા અને બે કટકા, અને એકદમ ધારદાર હોય. તો એ કમલેશ આનંદજીને આપણે સાંભળીએ. મને પણ ઘણા ટાઈમ પછી એમને આજે સાંભળવાનો મોકો મળશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હું ટૂંકું સૂત્ર બોલાવું છું, બધા રિપીટ કરજો. જગત ભરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ. સંત પુરુષોનું યોગ બળ. જગત ભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ. જગત ભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ. અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો. સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો. અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની, અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અમ સૌ મહાત્માઓને, અમ સૌ મહાત્માઓને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો. જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો. જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો. જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો. જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો. જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો. જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો. જગત કલ્યાણ હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાન પુરુષો, સાધુ, સંતો, સંન્યાસીઓ જેને આ ધરતી ઉપર જન્મ લીધો છે, એવા તમામ મહાન પુરુષોને મારા નમસ્કાર. અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ મુમુક્ષુઓ, જિજ્ઞાસુઓ અને લગ્ન પ્રસંગમાં આવેલા તમામ મહેમાનોને, વડીલોને મારા નમસ્કાર. ભારત વર્ષના ઇતિહાસની પરંપરા રહી છે
કે હિન્દુસ્તાનની અંદર અને હજારો વર્ષની પરંપરામાં પણ કોઈ પણ ધર્મગુરુ, કોઈ પણ શાસ્ત્ર જ્ઞાની, કોઈ પણ અનુભવી જ્ઞાની પુરુષે ક્યારેય માનવ સમાજ માટે લગ્નનો વિરોધ કર્યો નથી. અને એની સાબિતી કે 24માંથી મોટાભાગના તીર્થંકરો મેરિડ હતા, રામકૃષ્ણ પણ મેરિડ હતા, શ્રીમદ રાજચંદ્ર પણ મેરિડ હતા અને દાદા ભગવાન પણ મેરિડ હતા. જેને આપણે ભગવાન તરીકે જોઈએ છે, રિસ્પેક્ટેડ તરીકે જોઈએ છે, જેને ફોલો કરીએ છીએ, એ બધા પણ મેરિડ હતા. માટે લગ્નનો વિરોધ એ જ્ઞાનીઓને શોભા દેતી નથી. લગ્ન એક વ્યવહાર જીવનની પરંપરા છે. એટલે લગ્ન એ કોઈ સમાજમાં ખોટી વસ્તુ છે, ધાર્મિક રીતે ખોટી વસ્તુ છે, આધ્યાત્મિક રીતે ખોટી વસ્તુ છે, એ વાત જ કરેક્ટ નથી. પણ આધ્યાત્મિક પુરુષો, જ્ઞાની ભગવંતો, વિતરાગ ભગવંતો એવું કહેવા માગે છે કે જેમ તમે એક શરીર બીજા શરીર સાથે જેમ લગ્ન કરે છે અને પોતાનું લગ્ન જીવન જેમ આનંદથી પૂરું કરે છે, એવી જ રીતે શરીર સાથે જો આત્માનું મિલન થાય તો મુક્તિ મળે. એ જ શરીરની અંદર જો આત્મા પ્રગટ થઈ જાય તો મુક્તિ મળે. એટલે લગ્ન જીવન અને મુક્તિનો માર્ગ એ બંને વિરોધી નથી, પેરેલલ છે. કેવો છે? પેરેલલ છે. સમજવામાં થાપ ખાઈ ગયા આપણે. શું થઈ ગયા? સમજવામાં થાપ ખાઈ ગયા. મને ઘણા બધા લોકો ઘણા વર્ષોથી પૂછે છે કે સ્વામીજી તમે બ્રહ્મચર્ય ઉપર બહુ ઓછી વાત કરો છો. મારા સત્સંગો તમે બધા ટીવીમાં આવે છે, યુટ્યુબમાં બધે ઠેકાણે છે, તો તમે બ્રહ્મચર્ય ઉપર બહુ ઓછી વાત કરો છો. ત્યારે મેં કીધું કે બ્રહ્મચર્ય એ હિન્દુસ્તાનની પ્રત્યેક જીવો માટે અનિવાર્ય અંગ છે. શું કીધું? બ્રહ્મચર્ય પાળવું એ જીવ માત્ર માટે અનિવાર્ય છે. જેમ લક્ષ્મીની ઇકોનોમી કરો છો એમ વીર્યની ઇકોનોમી કરો. પણ બ્રહ્મચર્ય એટલે લગ્ન નહીં કરવાનું, બાળકો નહીં કરવાના, એને હું બ્રહ્મચર્ય નથી માનતો. વીર્યની ઇકોનોમી જેમ લક્ષ્મીની ઇકોનોમી કરો છો એમ કોની કરો? એ જીવ માત્ર માટે કામનું છે. કારણ કે તાકાત છે. શું છે? દેહ બળ, મનોબળ, વાણી બળ એ બ્રહ્મચર્યથી આવે છે. અને સંસારના સાધન સગવડો લક્ષ્મીથી મળે છે. એની પણ જરૂરિયાત છે, આની પણ જરૂરિયાત છે. પણ એને બાધાના રૂપમાં અથવા બંધનના રૂપમાં ના ઢાળો. લોકોને અવેર કરો કે એની વેલ્યુ શું છે. શું કહું છું? અવેર કરો. જેમ પૈસાની વેલ્યુ સમજો છો એમ વીર્યની પણ વેલ્યુ સમજો. ધેટ્સ ઇટ. પછી લોકો સ્વયંભૂ કરશે. જે વસ્તુની વેલ્યુ તમને સમજાશે એનું મહત્વ તમે ફોલો કરવાના છો. મહત્વ સમજાવવાની જરૂર છે, રિસ્ટ્રિક્ટ કરવાની જરૂર નથી. એટલે આધ્યાત્મ માર્ગની અંદર અને મુક્તિના માર્ગની અંદર અને સામાજિક માર્ગની અંદર જ્યાં જ્યાં નીતિ નિયમોએ સમાજના જીવન ઉપર જે ભરડો લીધો એને કારણે વિસ્ફોટ થયો. શું થયો? વિસ્ફોટ થયો. કોઈ પણ નિયમ લાવો એટલે બેક્સ પગ પડી જાય. કેટલાક પાળનારા ને કેટલાક. કોઈ પણ દુનિયાનો એક પણ નિયમ લાવો કે જેને 100% એક્સેપ્ટ કર્યો હોય. નિયમ એટલે જ બંધન અને બંધન એટલે જ વિરોધ. નિયમ એટલે મુક્તિ નથી. નિયમ એ વ્યવહાર ચલાવવાનું સાધન છે, પણ નિયમ એ બળજબરીનું સાધન ના હોવું જોઈએ. જ્યારે નિયમ બળજબરીમાં પ્રવેશ કરે એટલે બંધન ઉત્પન્ન થાય અને પછી એનું શું આવે? રિએક્શન આવે. શું આવે? આપણને પોતાને ખબર છે, બધાને અહીં બેઠેલા બધાને ખબર છે, નોકરીમાં, ધંધામાં અને પરિવારમાં અને સમાજમાં આપણે કેટલા નિયમોને પાળી અને પળાઈ શકીએ છીએ એ બધાને ખબર છે. એમ રાઈટ ઓર રોંગ? આપણા નિયમો આપણે પોતે પણ પાળી શકતા નથી, આપણા ઘરના પરિવારો પણ પાળી શકતા નથી, આપણે સમાજમાં રહીએ છીએ, સમાજ પણ પાળી શકતો નથી. બધું આપણને ખબર છે. માટે મેં કીધું નિયમ હોવા જોઈએ, નિયમનું રિસ્ટ્રિક્શન ના હોવું જોઈએ. નિયમ લોકોને હળવા બનાવવા માટે છે. નિયમ લોકોને જાગૃત કરવા માટે છે. શેના માટે છે?
એની જગ્યાએ નિયમ બાય ફોર્સ પડાવવામાં આવે છે, એટલે વિરોધ ઉત્પન્ન થાય છે સમાજમાં. શું થાય છે? એટલે શરૂઆતમાં બોર્ડ સિસ્ટમ હતી. નિયમમાં શું હતું કે આ નિયમોને વાંચીને ફોલો કરો. શું હતું? અને વિચારક માણસો સમજીને ફોલો કરતા હતા. પણ જ્યારે નિયમ મનુષ્ય દ્વારા બળજબરીથી પડાવવામાં આવ્યો, ત્યાર પછી શું થઈ ગયું? વિસ્ફોટ થઈ ગયો. એટલે જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું મોટામાં મોટું સૂત્ર, નો લો લો. કયો કાયદો? નિયમ વગરનો નિયમ. અવેર બધા ફિલ્ડમાં કરવાનું. શું કરવાનું? અવેર કરવાનું, જાગૃત કરવાનું, પણ કંટ્રોલ કરવાનું નહીં. તમે જુઓ, દરેક ઠેકાણે આ થયું છે. હું આખા વર્લ્ડના બધા જ ધર્મોનું ઓબ્ઝર્વેશન કરું છું. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ ઓલ રિલિજન, નોટ ઓનલી હિન્દુ, મુસલમાન, ક્રિશ્ચન, ઈસાઈ, પારસી, બધા ધર્મોનું ઓબ્ઝર્વ કરું છું. બધા ધર્મોમાં આ જ મુશ્કેલી છે. કોમન ફેક્ટર. નિયમ બનાવવો જોઈએ, પણ નિયમ શેના માટે? ઓનલી ફોર અવેરનેસ. કે ભાઈ માનો કે અહીંયા નિયમ લખ્યો હોય કે દરેક વ્યક્તિએ પલાઠી વાળીને બેસવું, પણ કોઈને પગ તકલીફ હોય તો લાંબો કરે, કોઈને બેસવાની ટેવ ના હોય તો 2 પગ લાંબા કરે. હવે આપણે નિયમથી કંટ્રોલ કરવા જઈએ તો શું થાય? ફેરથી કે હવે અહીંયા જવું નહીં, ફેરથી આપણે શું છે થાય કે ના થાય? તો નિયમ કેવો છે? દુનિયાનો કોઈ પણ નિયમ, ઇવન તો ગવર્મેન્ટનો કોઈ પણ નિયમ ક્યારે પણ 100% પડાયો નથી અને પડાવવાનો પણ નથી. માટે નિયમ એ લોકોની અવેરનેસ માટે હોવો જોઈએ, અને નિયમ ન પાળવાથી નુકસાન શું છે તે બતાવવું જોઈએ. પછી લોકો ઉપર છોડી દેવું જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? લોકો ઉપર છોડી દેવું જોઈએ. એટલે અમે થોડી વ્યવહારની વાતો કરી, હવે થોડી ધાર્મિક વાતો કરીએ, પછી આધ્યાત્મિક વાતો કરીએ. વિશ્વની અંદર અનેક ધર્મોનું પ્રચલન હાલ વર્તમાન જીવનમાં છે. વિશ્વની અંદર હાલ અનેક ધર્મોનું પ્રચલન વિશ્વમાં છે. અને આ અનેક ધર્મોનું બનવાનું કારણ શું હતું? એક ધર્મવાળાએ બીજા ધર્મને એક્સેપ્ટ કેમ ના કર્યો? કેમ ના કર્યો? એક ધર્મવાળાએ બીજા ધર્મને એક્સેપ્ટ કેમ ના કર્યો? કારણ કે ધર્મગુરુઓએ ધર્મને કુંડાળું બનાવી દીધું. શું બનાવી દીધું? રામે એવું ના કીધું કે મારો ધર્મ છે, કૃષ્ણએ એમ ના કીધું મારો ધર્મ છે, મહાવીરે એમ ના કીધું મારો ધર્મ છે. પણ જ્યારે ધર્મ જ્યારે કુંડાળું બની ગયું, આ અમારો ધર્મ છે ને તમારો જુદો, ત્યારથી શું થઈ ગયું? ધર્મ ઓટોમેટિક શું થઈ ગયું? કુંડાળું થઈ ગયું. ओके ओके नहीं, पहले गुजराती में कहा तो कोई बात नहीं, मैं आई स्टार्ट इन हिंदी, नो प्रॉब्लम, गुड. ओके ओके. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर इतने सारे धर्म है, धर्म गलत नहीं है, और मूल धर्म गुरु है, मूल धर्म का पुरुष है, धार्मिक पुरुष, वो भी गलत नहीं था. उन्होंने भी अच्छी भावना से सबके सामने अपना धर्म पेश किया. सभी मानवों का उत्थान होवे, कल्याण होवे, सबका मंगल होवे, उसी भावना से उन्होंने धर्म का स्थापन किया. मगर उसके जाने के बाद वो धर्म अपने आप संप्रदाय बन गया, क्योंकि लोगों ने यही माना कि ये जो धर्म है वो ही धर्म दूसरे को हम फॉलो करने के लिए कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा धर्म बराबर नहीं है, ये धर्म बराबर है. इसी प्रकार से लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं. यस और नो? तो धर्म किसको कहते हैं? धर्म समझने की चीज है, अनुभव करने की चीज है, दृष्टि से उपयोग करने की चीज है. राम ने जो भी कहा वो भी सही है, कृष्ण ने जो भी कहा वो भी सही है, और महावीर ने जो कहा वो भी सही है, श्रीमद राजचंद्र ने, दादा भगवान ने कहा वो भी सही है. हमको क्या स्वीकार करना है, हमको क्या फॉलो करना है, हमको क्या समझना है, वो इंपॉर्टेंट बात है. मगर वो हम भूल गए.
और एक धर्म को बड़ा बताने के लिए दूसरे को हमने छोटा बता दिया, दूसरे को हमने छोटा बता दिया। समझ में आया? बस यही से वर्तुल शुरू हो गया। और इसीलिए इतने महान पुरुषों ने स्थापन किया हुआ धर्म भी अपने आप संप्रदाय बन गया। क्या बन गया? कि तुम्हारा अलग। और जब राम ने नहीं कहा कि मैंने जो बात कही है वो संप्रदाय के लिए है, वो व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं है, सबके लिए है। महावीर की बात भी किसके लिए थी? और कृष्ण भगवान की गीता की बात भी, और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की बात भी। मगर बाद में क्या बना दिया? वर्तुल बना दिया। तो जो विश्व धर्म था वो अपने आप क्या हो गया? और हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? जियो और जीने दो। हम भी जिए और आप भी अपने आप से अच्छी तरह जियो, यही बात थी। और अपने पहले महान पुरुषों का जब प्रवचन होता था गद्दी पर बैठ के अलग अलग धर्म गुरुओं का, तो वो क्या बोलते थे? हमारे धर्म में ये बताया गया है, आप भी उसको समझने की कोशिश करो, उपयोग करने की कोशिश करो, अनुभव करने की कोशिश करो और आपके जीवन को मंगलमय बनाओ। ये नहीं कहते वहां से छोड़ के यहां आओ, ऐसा नहीं बोलते थे, क्योंकि संप्रदाय की बात नहीं थी। और विश्व के जितने भी महान पुरुष हुए उन्होंने विश्व धर्म की ही स्थापना किया था, और तभी आज करोड़ों लोग इसको मानते हैं। मगर बाद में क्या बन गया? संप्रदाय बन गया। और इसीलिए फिर उसके अंदर कंपटीशन एंड कंपैरिजन आ गई। तो महान व्यक्ति का जो वक्तव्य था, महान व्यक्ति का जो उद्देश्य था, वो भाव फिर खत्म हो जाता है। जब आपने संप्रदाय बना दिया तो फिर क्या करोगे? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसीलिए धर्म के अंदर भी हर धर्म के अंदर जो भी अच्छाइयाँ है वो हमको अपने जीवन में ग्रहण करना है, अपनाना है, समझना है, स्वीकारना है और अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए स्वीकारना है, किसी को बड़े छोटे कहने के लिए नहीं। आप समझे ना? हर धर्म में से क्या क्या अच्छाइयाँ हैं वो हमको स्वीकारना है, समझना है और अपने जीवन को मंगलमय बनाना है, आध्यात्म की ऊंचाई की ओर आगे ले जाना है। इसीलिए मैं हर धर्म को समझने की कोशिश करता हूँ। न कोई धर्म गलत है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। इसमें से जो कुछ अच्छाइयाँ है वो मेरे को स्वीकार करना है, समझना है, उपयोग करके अनुभव करना है। तो फिर उसमें कोई कंपटीशन नहीं रहेगी, कंपैरिजन नहीं रहेगा। मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, वो प्रश्न ही नहीं रहेगा। यस और नो? तो इसीलिए ये धर्म की बात मैंने कहा। अभी समय की थोड़ी मर्यादा है क्योंकि मेरे को भी बाहर जाना है। तो या और तीसरी बात मैं कहूँ, पहले मैंने सामाजिक बात कहा, अभी धार्मिक बात कहा, अभी आध्यात्म की बात करता हूँ। मैं समझ दूंगा 5-10। ओके। तो अभी मैं थोड़े समय के लिए आध्यात्म की बात करता हूँ, जो मेरा मूल सब्जेक्ट है। मेरा मूल सब्जेक्ट है स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्म विज्ञान। ये मेरा मूल सब्जेक्ट है। और आध्यात्म विज्ञान का बेस है लॉ ऑफ नेचर, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। कुदरत के 6 तत्व सनातन तत्व के ऊपर आधारित है। और आध्यात्म विज्ञान आत्मा और बाकी के 5 तत्वों के ऊपर आधारित है। वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, वो सांप्रदायिक या धार्मिक सत्य के ऊपर आधारित नहीं है। और इसीलिए विश्व के हर धर्म को, आज नहीं तो कल, विश्व के हर धर्म के धर्म गुरुओं को, विश्व के हर धर्म के धर्मगुरु के फॉलोअर्स को भी अगर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो ये आध्यात्म विज्ञान सिद्धांत के रूप में समझना ही पड़ेगा, नो चॉइस। और आज तक जो भी लोग मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े हैं और जिन्होंने मुक्ति पाया है, चाहे वो तीर्थंकर के रूप में है, केवल ज्ञानी के रूप में है या और कोई रूप में जिन्होंने मुक्ति पाया है, सभी लोगों को यही सनातन सत्य को समझना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सांप्रदायिक सत्य से पाप पुण्य का मार्ग चालू होता है और सनातन सत्य से मुक्ति का मार्ग चालू होता है। सांप्रदायिक सत्य से सनातन सत्य समझ में नहीं आता है और सनातन सत्य की बात आती है तो सांप्रदायिक सत्य रहता भी नहीं है। इसीलिए आध्यात्म विज्ञान को समझने के लिए हमको धर्म से ऊपर उठने की जरूरत है। और मैंने दुनिया के एक साइंटिस्ट जो
न्यूक्लियर साइंटिस्ट मेरे को कनाडा में मिले थे। तो उनका एक प्रश्न था कि आप आध्यात्म विज्ञान की जो बात करते हैं और दुनिया के इतने सारे धर्म हैं, वो भी अपने धर्म की बात करते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? उन्होंने मेरे को प्रश्न किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल साइंस। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों के सामने रखा, क्या रखा? आध्यात्म विज्ञान को। क्या डिफरेंस है? तो मैंने कहा दुनिया के जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जो भी है, सभी धर्मों को मैंने फॉर्मेट बताया। क्या बताया? फॉर्मेट। दे फॉलो द फॉर्मेट। और मैं आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूं, बियॉन्ड फॉर्मेट है। क्या है? और फॉर्मेट शब्द का मीनिंग क्या है मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। फॉर्मेट का मतलब होता है एक भगवान का टाइटल हर धर्म में चाहिए, यस और नो। एक गुरु का टाइटल चाहिए, चाहिए कि नहीं? एक मंदिर का टाइटल चाहिए, एक मंत्र का टाइटल चाहिए, शास्त्र का टाइटल चाहिए, संस्था का टाइटल चाहिए, गुरु शिष्य का टाइटल चाहिए और क्रियाकांड का टाइटल चाहिए। ये 8 टाइटल होते हैं। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? फॉर्मेट। और दुनिया के कोई भी धर्म फॉर्मेट से बियॉन्ड नहीं हो सकता, एनी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। और मेरी बात बियॉन्ड फॉर्मेट है, जिसमें फॉर्मेट नहीं आता है। और विश्व के कोई भी धर्म गुरु ने, अभी की बात करता हूं, विश्व के कोई भी धर्म में अभी जितने भी हैं, कोई भी धर्मगुरु फॉर्मेट से बियॉन्ड बात ही नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? उनको आधार चाहिए, बिना आधार वो बात नहीं कर सकते। तो बिना आधार कौन बात कर सकता है? वो भी बता दूं। द पर्सन दे रियलाइज बाय इट सेल्फ द यूनिवर्सल ट्रू साइंस। जो व्यक्ति ने खुद ने ये सनातन सत्य का अनुभव करता है, अनुभव किया है, वो बात कर सकता है। उनके लिए फॉर्मेट मायना नहीं रखता है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आपको समझ में आता है ना? वो बताओ आपको। तो कहने का मतलब, जब सनातन सत्य, कुदरती कानून समझ में आ गया, 6 तत्व समझ में आ गए, ये दुनिया का संचालन कैसा होता है वो सिद्धांत के रूप में समझ में आ गए, उनको फॉर्मेट की जरूरत नहीं होती है। वो फॉर्मेट का विरोधी भी नहीं है और उसको फॉलो भी न करते हैं न करवाते हैं। आप समझे ना? उनके लिए वो सब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? हालांकि उनका जीवन जो है, बाह्य जीवन, मेरा बाह्य जीवन, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे दूं, मेरा बाह्य जीवन फॉर्मेट से भरा हुआ है। खाना पीना रहना सोना आप करते हैं, वही मैं करता हूं। आप मंदिर में जाते हैं, मैं भी जाता हूं। आप मंत्र बोलते हैं, वो भी मैं मंत्र बोलता हूं। आप माता पिता को वंदन करते हैं, मैं भी करता हूं। आप अपने भाई बहन पति पत्नी बच्चे को जो आपको देखभाल करते हैं, मैं भी करता हूं। मेरे पति पत्नी या बच्चे नहीं है, मगर बहन बने भी बच्चे मेरे भांजे सब हैं, तो उसकी मैं देखभाल करता हूं। यानी आपके जैसा ही मेरा व्यवहार है। मगर आध्यात्म विज्ञान इज कनेक्टेड विद विजन, नॉट विथ योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन। आध्यात्म विज्ञान वो दृष्टि का विषय है, मन वचन काया का विषय नहीं है। और इसीलिए मन वचन क्या काया क्या करता है वो सब्जेक्ट नहीं है आध्यात्म विज्ञान में, क्योंकि मन वचन काया जन्म से मौत तक अपने पिछले अवतार के कर्मों के वश ही चलता है और चलता रहेगा। चाहे वो राम का लाइफ है, चाहे कृष्ण का है, चाहे महावीर का लाइफ है, सबका लाइफ अपने पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक ही चलेगा। उसमें किसी के पास फ्रीडम है नहीं। तो जब फ्रीडम नहीं है, उस सब्जेक्ट में बात क्यों करूं? जहां फ्रीडम है, आपके विजन के अंदर फ्रीडम है, आपके भाव के अंदर फ्रीडम है। आप जो भाव करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप समझे ना? मगर मन वचन काया में फ्रीडम, आप जो सोचना चाहते हैं वो सोच नहीं सकते हैं, बोलना चाहते हैं बोल नहीं सकते हैं, और जो करना चाहते हैं वो कर भी। रामकृष्ण महावीर भी अपने जीवन में जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके, वनवास जाना ही पड़ा। ज्ञानी होते हुए भी मृगजल के पीछे दौड़े और सीता जी को रावण ले गए। ज्ञानी होते हुए,
क्योंकि कंपलसरी है। क्या है उनके पास ऑप्शन? कृष्ण भगवान, वासुदेव नारायण, फिर भी महाभारत के अंदर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करा सके, युद्ध करना ही पड़ा, युद्ध करना ही पड़ा। वही कर्म सत्ता। भगवान महावीर को दीक्षा लेना था, बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया, नहीं गए, रुकना ही पड़ा, कंपलसरी। कान में सूर लगाई, कंपलसरी, नो ऑप्शन। तीर्थंकर भगवान। तो जो मन वचन काया कर्म के अधीन कुदरती कानून से चलता है, उसकी मैं बात भी करूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, और इसीलिए मैं मन वचन काया की बात नहीं करता हूं, क्योंकि कंपलसरी है। मगर मैं इसकी बात करता हूं कि मन वचन काया को चलाने वाला कौन है, मैं उसकी बात करता हूं। हु इज द कंट्रोलर एंड गवर्न योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन। आपके मन वचन काया का कंट्रोलर कौन है, गवर्न कौन करता है, मैं उसकी बात करता हूं। और वहां ही हमको जागृत होने की जरूरत है। आज पूरे विश्व के अंदर कुदरती कानून से ऊपर कोई है नहीं, और वही कानून हम जानते नहीं है, क्योंकि हम तो सामाजिक कानून में पड़े हैं, परिवार के कानून में पड़े हैं, धार्मिक कानून में पड़े हैं। आप समझे ना, हम कितने उलझ गए हैं। पहले परिवार का कानून, फिर धर्म का कानून, संप्रदाय का कानून, उसमें से देश का कानून, उसमें से बाहर निकलेंगे तभी तो ये कुदरती कानून जानेंगे ना। वहां तक तो समय होता नहीं है, श्वास बंद हो जाता है। तो इसीलिए ये कुदरत का कानून जो है, जो मैंने कहा, ये भाई साहब ने प्रश्न कहा कुदरती रचना या कुदरत का कानून क्या है? हाँ, सनातन सत्य क्या है वो मैं बताऊंगा। बस હવે હું મારું અમને છેલ્લો આન્સર આપીને સમાપ્ત કરું છું। પછી કોઈને પ્રશ્ન પૂછવા હોય તો 5-10 મિનિટનો હું બધાને સમય આપીશ। મારે જે બેઝિક કહેવાનું હતું સામાજિક, ધાર્મિક અને આધ્યાત્મ, એ બેઝિક મેં કહી દીધું, છેલ્લે એમને આન્સર આપી દઉં છું। પછી જેને પ્રશ્ન પૂછવા હોય એ મુક્ત મને પૂછી શકે છે। મારી મૂળ શૈલી ક્વેશ્ચન આન્સર ઉપર છે, હું ક્યારેય પ્રવચન કે લેક્ચર નથી કરતો। ધીસ ઇઝ માય મેથડ, મારી પ્રકૃતિ છે। તેમનો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ આપણે શું કીધું, સનાતન સત્ય, સનાતન સત્ય અને સનાતન સુખ એટલે શું? સનાતન સત્ય એને કહેવાય કે જે સત્ય ક્યારે બદલાતું નથી, જે સત્યનો નાશ થતો નથી। શું નથી થતો? બદલાતું નથી અને એનું નામ સનાતન કહેવાય। 6 તત્વો એવા છે કે જે સનાતન છે, જે બદલાતા પણ નથી અને નાશ પણ થતો નથી। એટલે 6 ઇટર્નલ એલિમેન્ટ્સ, એનું મેં એક નામ આપ્યું છે કુદરત। લોકોને સમજ ના પડી એટલે કુદરત અને પછી ભગવાન કરી નાખ્યું કે આ દુનિયા કોણ ચલાવે છે? ભગવાન। અને જે થોડા બુદ્ધિશાળી હતા એને કીધું કુદરત ચલાવે છે। પણ સાયન્સ શું કહે છે? 6 ઇટર્નલ તત્વોથી આ દુનિયા ચાલે છે। ઓકે, એટલે કુદરત છે એ 6 તત્વોની બનેલી છે। એની નીચે કુદરતનો કાનૂન આવે છે। કોનો કાનૂન? જેને લો ઓફ નેચર કહેવાય છે। એ કુદરતનો જે કાનૂન છે, એ કુદરતનો કાનૂન ને આધારે જ આ દિવસ રાત થાય છે, ઠંડી ગરમી વરસાદ થાય છે, ભરતી ઓટ આવે છે, અને કર્મનું જે ફળ મળે છે એ પણ કુદરતી કાનૂનથી મળે છે, કોઈની મરજીથી મળતું। કર્મ આપણે કરીએ છીએ પણ ફળ કુદરતી કાનૂન પ્રમાણે આપે છે, માટે નિષ્પક્ષપાતી છે। જો કોઈ વ્યક્તિ આપતી હોય તો પક્ષપાત થાય। કર્મ મેં કર્યું પણ કર્મનું ફળ આપનારો એ કુદરતનો કાનૂન છે। માટે રામકૃષ્ણ મહાવીરને પણ છોડતા માટે કુદરતનો કાનૂન। પહેલા કુદરત કીધું, કુદરત એટલે 6 તત્વો, એની નીચે કુદરતનો કાનૂન જે યુનિવર્સલ ટ્રુથ લો છે, જે જીવ માત્રને લાગુ પડે છે, માને કે ના માને, સમજે કે ના સમજે, સ્વીકારે કે ના સ્વીકારે, પણ કુદરતના કાનૂનથી આ દુનિયાનો કોઈ પણ જીવ અલિપ્ત હોઈ શકે નહીં, રહી શકે નહીં। સમજાવું છું, એ પછી બીજો પ્રશ્ન છે। એટલે આવી રીતે આ કુદરતના કાનૂનની નીચે આવશે કુદરતી રચના। શું આવશે? ત્રીજો શબ્દ કુદરત, કુદરતી કાનૂન, એની નીચે આવશે કુદરતી રચના। અત્યારે આ 5 ઇન્દ્રિયોથી જે વિશ્વને અનુભવી રહ્યા છે, પરિવર્તનશીલ, કેવી? એને હું કુદરતી રચના કહું છું।
જેને દાદા ભગવાને સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટાન્શિયલ એવિડન્સ કીધું. શું કીધું? સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટાન્શિયલ એવિડન્સ. વૈજ્ઞાનિક સંયોગિક પુરાવાઓથી આ દુનિયા ચાલે છે, આ બધા સંજોગો ચાલે છે. એટલે આવી રીતે આ ત્રણ વસ્તુ, કુદરત, કુદરતનો કાનૂન અને કુદરતી રચના, આનું એક નામ વ્યવસ્થિત શક્તિ. સમજી ગયા? 6 તત્વોનું નામ કુદરત, એનાથી ઉપર કંઈ નહીં. હવે જેને પ્રશ્ન પૂછવો હોય. છ તત્વો છે ને, આ 6 તત્વો કેવી રીતે વર્ક કરે છે મનુષ્યના જીવનમાં? ઓકે, કઈ સમજી ગયો, આપનો પ્રશ્ન સમજી ગયો. 6 તત્વો મનુષ્યના જીવનમાં કેવી રીતે વ્યક્ત કરે છે, હું બ્રોડ આસ્પેક્ટમાં જવાબ આપી દઉં છું, એટલે બધા પ્રશ્નોના જવાબ એમાં આવી જાય. પહેલી વસ્તુ એ કે આ વિશ્વ 6 તત્વોથી બનેલું છે. 6 તત્વ છે ચેતન, જળ, ગતિસહાયક, સ્થિતિસહાયક, ટાઈમ એન્ડ સ્પેસ. આ 6 તત્વોથી વિશ્વ બનેલું છે. નંબર 1, 6 તત્વથી વિશ્વ ચાલે છે અને 6 તત્વથી આપણા મન વચન કાયા બનેલા છે. શું કીધું? મન વચન કાયાનો એક પણ સંજોગ 6 તત્વની હાજરી વગર ના હોઈ શકે. એટલે 6 તત્વ એ જ સનાતન સત્ય છે, માનો કે ના, એનાથી બિયોન્ડ કશું નથી. બાકી બધું રિલેટિવ સત્ય છે. શું છે રિલેટિવ સત્ય? એટલે દરેક પોતપોતાના વ્યૂ પોઈન્ટ. ખ્યાલ આવી ગયો ને? વ્યૂ પોઈન્ટ બધાના અલગ હોય, પણ 6 તત્વથી ઉપર કશું નથી. એટલે આ દુનિયા 6 તત્વોથી બનેલી છે, 6 તત્વોથી ચાલે છે. આપણા મન વચન કાયા પણ 6 તત્વોથી જ ચાલે છે, જેમાં ચેતન તત્વ, જળ તત્વ, ગતિસહાયક, બ્રિધિંગ, ડાયજેસ્ટિંગ, સ્થિતિસહાયક, જે ઓર્ગન્સ છે બધા સ્થિતિસહાયક છે. સમય તત્વ, જૂનું, નવી વસ્તુ જૂની કરવી. ખ્યાલ આવી ગયો? અને બીજો કયો તત્વ રહ્યો? સ્પેસ. આ સ્પેસ વગર આપણે બ્રીથ લઈ શકીએ? ખોરાક ખાઈ શકીએ? પાણી પી શકીએ? તો 6 તત્વો છે કે નહીં? અહીંયા છે. અને માટે કહેવાય છે વેદાંતમાં પિંડેશો અને બ્રહ્માંડેશો. આપને સમજાઈ ગયું? મારા જીવનમાં જે કંઈ બી પ્રસંગ આવે છે, હું સમજો કે એક ધંધો કરું છું, મારે જોગમાં આવ્યો છે, આ 6 તત્વોને કેવી રીતે લિંક લાવો એમને? હા, કહું. સ્પેસ, આકાશ, જી, આકાશ, સમજી ગયો. તત્વ, એટલે તમને એ પ્રસંગ સમજાવું, બિઝનેસનો એક પ્રસંગ સમજાવું. ओके सॉरी 6 तत्व अपने जीवन में या तो डे टू डे लाइफ में या तो बिजनेस में किस प्रकार से वो काम करते हैं, यही आपका प्रश्न है. तो बताऊं मैं आपको. जैसे आप बिजनेस करते हैं तो एज अ पर्सन आपके अंदर तो चेतन है, सामने वाले के अंदर भी चेतन है, तो एक तत्व आ गया. फिर ये भी जड़ है, सामने वाला भी क्या है? जड़. और जो बिजनेस करते हैं वो भी चीज जड़ है, तो जड़ दोनों आ गया. कोई भी अवस्था की बात करता हूं, ठीक है. फिर गतिसहायक चाहिए आपको कोई भी क्रिया के लिए. आपको श्वास लेना है तो भी गतिसहायक चाहिए, और व्यवहार करना है तो भी गतिसहायक, बोलना है तो भी, सोचना है तो भी गतिसहायक, देखना है तो भी गतिसहायक, मोशन. इसके साथ स्थितिसहायक चाहिए. कोई भी चीज गति वाली है, उनके सामने स्थिति नहीं है, तो गति की कोई वैल्यू नहीं है. तो गति को गति तब कहेंगे जब स्थिति है. तो जो चीज हलन चलन नहीं करती है वो स्थिति सहायक है एट दैट टाइम. आप समझे? जो चीज गति नहीं करती है उस समय वो स्थिति सहायक है. और टाइम, जिस टाइम पे काम होता है, अच्छा या बुरा, प्रॉफिट एंड लॉस, वो समय तत्व है. और ये पूरी प्रोसेस कहाँ हुई? स्पेस तत्व में. कहाँ हुई? बिना स्पेस कोई प्रोसेस हो सकती है? नहीं हो सकती. तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति की कोई भी अवस्था 6 तत्वों से बियॉन्ड हो सकती है? दैट्स इट. सो दिस इज टू बी कॉल्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस. ये दुनिया के कोई व्यक्ति ने बनाया हुआ विज्ञान नहीं है. ये आध्यात्म विज्ञान का क्रिएटर कोई नहीं है, वो तो सनातन है. हम इसका रियलाइजेशन कर सकते हैं. और रामकृष्ण महावीर का भी ये विज्ञान नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस उनके पैदा होने से पहले भी था. नहीं समझ में आया? तो ये आध्यात्म विज्ञान की जो बात करता हूँ और 6 तत्व की बात करता हूँ, कुदरती कानून की बात करता हूँ, वो तो परमानेंट है.
छह तत्व हाजिर रहते हैं, हम कोई काम करते हैं तो, किंतु मेरे काम करने में वो कैसे मुझे छह तत्व मिलकर के उस समय हाजिर रहते हैं। छह तत्व भी के अंदर ही मैं काम कर रहा हूँ, किंतु हमारे काम करने के लिए मुझे ये छह तत्व किस तरह से प्रेरित करते हैं। प्रेरित नहीं करते हैं, तो प्रवृत्ति- आपको 6 तत्व के मुताबिक ही जीना पड़ता है। हाँ, मुताबिक क्या, नहीं तो वो तो संयुक्त रीते कैसे हो सकता है। वही तो, आपको सोचना है वहां भी आपकी फ्रीडम नहीं है, बोलना है वहां भी नहीं है, और क्रिया करना है वहां भी आपकी फ्रीडम नहीं है। तो मेरी क्रिया में इतने भेदभाव क्यों है फिर? क्रिया में मतलब मेरे कोई भी काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, सुबह कुछ बात है, शाम को कुछ बात है, किसी से झगड़ा है, किसी से लड़ाई है, किसी से पैसा करता हूँ, किसी से मैं जाता हूँ, गाँव जाता हूँ, तो अलग अलग जो क्रिया हो रही है उस समय जब कॉमन से तत्व हैं हर समय, तो वो हर समय एक ही टाइप के क्रिया करा सकते हैं ना। बताओ, कोई बात नहीं, आपका प्रश्न बराबर है। देखो, 6 तत्व आपके कर्मों के फल के रूप में सहायक है। चोरी करना है तो भी सहायक है, दान देना है तो भी सहायक है, मारामारी करना है तो भी सहायक है, प्रेम करना है तो भी सहायक है, जीना है तो भी सहायक है, मरना है तो भी सहायक है। एनी क्रिया में वो 6 तत्व सहायक है, कोई भी प्रकार की, जन्म से मौत तक। एक प्रकार की क्रिया नहीं, सभी क्रिया में। कोई भी क्रिया जन्म से मौत तक जो मन वचन काया से होती है, वो बिना 6 तत्व संभव नहीं है। किंतु मुझे दुख से शांति की तरफ जाना है, तो मैं छह तत्वों को कैसे उसमें इन्वॉल्व करूं? मैं समझ गया। अगर आपको दुख से शांति की ओर जाना है तो आपका मन वचन काया, समझ लो ध्यान से, मन वचन काया, और दुनिया के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया को कुदरती रचना ही समझना पड़ेगा। किसकी रचना? मेरा प्रश्न है, मैं दुख से शांति की तरफ जाना चाहता मैं हूं। वही रास्ता बताता हूं आपको, वही रास्ता बताता हूं, एग्जैक्टली शॉर्ट एंड स्वीट। आपका मन वचन काया और दुनिया की कोई व्यक्ति का मन वचन काया, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए, देखते हैं, सुनते हैं, आप समझते हैं ना, सभी व्यक्तियों को कुदरती रचना के रूप में ही देखना पड़ेगा। नो डूअर एंड नो ओनर। ये मन वचन काया और इनके साथ जुड़ी हुई कोई भी क्रिया के न मैं मालिक हूं न और कोई मालिक है। ये मन वचन काया को चलाने वाला न मैं हूं न और कोई व्यक्ति उनके मन वचन काया चला सकता है। अगर ये मेरा विजन रहेगा तो राग द्वेष संभव ही नहीं है। फिर त्याग करने की जरूरत है, माला गिनने की जरूरत है, पूजा करने की, आरती करने की जरूरत है, कोई भगवान को मानना न मानने की जरूरत है, मगर ये विज्ञान नहीं समझोगे, ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो द ट्रेडिशन, बिकॉज आपके पास जो विजन है वो किसका है? फॉर्मेट का। अगेन व्हाट आई हैव टू फॉलो, वो प्रश्न है मुझे, व्हाट आई हैव टू फॉलो। यू फॉलो द लॉ ऑफ कुदरत, कुदरत का कानून और कुदरती रचना। ये 3 बातों को समझ के हर संजोग में आपको दृष्टि से उपयोग करना है और आपको खुद को शुद्धात्मा पद में रहना है। दैट्स इट, नथिंग एल्स थोड़ा इन एनी सरकम। थोड़ा इजी करने की बात है। easy तो इसमें डिफिकल्ट क्या है? ये ला, कानून, कुदरत मेरे जीवन को धक्का मार रहे हैं या मेरे जीवन को क्रियान्वयन करते हैं, वो किस फॉर्मेट में कैसे करते हैं, वो अभी भी थोड़ा सा। ओके ओके ओके, मैं सिंपल बात बता दूं आपको, सिंपल बात। अभी जरा ध्यान से सुनना, अटेंशन रखना, शॉर्ट टाइम में इसलिए डिटेल में नहीं कहूँगा। पहले ये हमारा जो शरीर की डिज़ाइन है, डिज़ाइन बताता हूँ मैं आपको, इंटरनल डिज़ाइन जिससे हमारी बॉडी चलती है, वो पूरी डिज़ाइन कुदरत की है। और इसीलिए दुनिया के कोई भी शरीर को कोई भी डॉक्टर रिपेयरिंग कर सकता है, क्योंकि एक ही डिज़ाइन है। यस और नो? तो डिज़ाइन एक है, मतलब कुदरत की है। इंसान की होती तो क्या होता? तो पहले ये बॉडी की डिजाइन कुदरत की है, फिर ये बॉडी जो है फिजिकल बॉडी 5 महाभूतों से बना है, वो भी कुदरत का है। यस और नो? इसके बाद अगर बॉडी तो बना दिया, उसको 100 साल तक जिंदा रखना है, हवा पानी खुराक भी कुदरत देता है। यस और नो? यस और नो? अच्छा, अभी 100 साल जिंदा रखने के बाद श्वास बंद भी करना है तो कौन करेगा? वो भी कुदरत करेगा। इसके अलावा 100 साल जीवित क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको कर्मों की भुगतान करना है। एक मिनट बाकी, अभी 100 साल तक आपको जिंदा क्यों रखता है? कर्मों की भुगतान करना है। मगर भुगतान करने का संजोग भी कौन देगा?
कुदरत देगा। कल क्या होगा, 1 घंटे के क्या बाद क्या होगा, हमको नहीं मालूम। कुदरत संजोग देगी, वही हमको करना पड़ेगा। पूर्व भोग के कर्मों का जो फल है और ये कुदरत का, इसका कनेक्शन कैसे हुआ? वही तो कहता हूं कि कर्मों का फल देने वाला कुदरत है, इसीलिए तो उसको कुदरत का कानून कहता है। हमको तो मालूम नहीं कि पिछले अवतार में हमने कौन से कर्म किए थे, मालूम है? तो कर्म को, पूर्व भोग के कर्म को भी मानना पड़ेगा, ये तो है ना? बिना पूर्व कर्म हमारा बर्थ नहीं होता है। बिना पूर्व कर्म हमारा बर्थ ही नहीं होता है। यानी पूर्व कर्म और कुदरत जो आप कहते हैं अभी तत्व, इसका दोनों का कोई तालमेल तो है ना फिर? हाँ, वो ही तालमेल है। आपका जो कर्म किया है वो कर्म के मुताबिक ही कुदरत फल देती है, अपनी मर्जी से नहीं। मगर एक बात लाइन ऑफ डिमार्केशन में ध्यान से सुन लो, जब कर्म करते हो तब तुम स्वतंत्र हो, क्या बताया? मगर कर्म की भुगतान करते हो तुम परतंत्र हो, क्योंकि अभी जो भी जन्म से मौत तक आप जो भी करोगे कुदरत करवाएंगी, वो ही करोगे, संजोग भी वो ही देंगे, श्वास भी वो ही देंगे। आपने कहा दिया ना, कर्म तो स्वतंत्र, कर्म करने का मैंने कर्म स्वतंत्र बताया, कर्म फल नहीं बताया। और जन्म से मौत तक कर्म फल है, तो कर्म करने का मैं स्वतंत्र हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्म की भुगतान उसमें कुदरत और पूर्व भोग का कर्म आड़ा नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं। बताऊं मैं आपको, कर्म का एक मिनट, कर्म का मतलब क्रिया नहीं, कर्म का मतलब भाव, कर्म का मतलब इंटेंशन, नॉट थॉट स्पीच एंड एक्शन। वो कर्म नहीं है, वो कर्म फल है। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलिए। क्रिया करता हूँ तब स्वतंत्र हूँ, ये क्रिया करने में स्वतंत्र हूँ, तो फिर कुदरत का नियम और पूर्व भोग का कर्म जब मैंने क्या काम किया वो उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जब मैं कर्म करने में, क्रिया करने में स्वतंत्र हूँ। आप क्रिया और कर्म दोनों को क्यों जोड़ते हैं वो नहीं ना, कर्म समझ नहीं में जोड़ता हूँ, आता। मैं क्रिया ही जोड़ता हूँ। क्रिया करने में जब स्वतंत्र हूँ तो कुदरत का फिर नियम लागू नहीं पड़ा ना, जो तत्व का, द्रव्य का। आप थोड़ा उल्टा समझ गए। मैंने कहा इस दुनिया में श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति भी कुदरत ने किसी को नहीं दिया है, और इसीलिए मन वचन काया चलाने की शक्ति है, उसमें तो प्रश्न है ही नहीं। तो फिर वो क्रिया की तो बात आएगी ही नहीं कर्म के ऊपर। ये तो कर्म फल है। कर्म किसको कहेंगे? भाव सत्ता, जिसमें माइंड स्पीच सेपरेट हो जाता है। ये मैकेनिकल पार्ट है। क्या है? मैकेनिकल पार्ट के अंदर पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता नहीं है, और इसीलिए मैंने कहा है मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है। और इसीलिए दोनों को जोड़ने की कोशिश मत करो। दोनों को जोड़ना इसी का नाम है धर्म, और दोनों को सेपरेट रखना उसी का नाम है विज्ञान। समझ में आया? दोनों को जोड़ना उसका नाम धर्म। धर्म में क्या कहेंगे? कर्म फल भी भुगते हैं और कर्म भी करते हैं, यही कहते हैं ना। विज्ञान में क्या कहता है? कर्म करने वाला अलग है और भुगतान करने वाला अलग है। दोनों डिवीजन क्या है? यही तो कंफ्यूजन है। समझ में आया? और किसी को प्रश्न है? किसी को भी प्रश्न है तो कर सकते हैं। જય સચિદાનંદ. કોઈને ગુજરાતીમાં કરવા હોય તો હિન્દીમાં કરવા હોય, તમે જે ભાષામાં પ્રશ્ન કરશો એ ભાષામાં હું જવાબ આપીશ. અત્યારે સારી સમજણ પડી કે કર્મ ફળ શું અને ક્રિયા શું, યા અને ભાવ એટલે એ કર્મ જ છે. હા, ને ભાવ ઇઝ ક્રિએટેડ વિથ યોર इंटेंशन नॉट एक्शन. चोरी करने वाला चोरी न करने का भाव कर सकता है, और चोरी न करने वाला चोरी करने का भी भाव कर सकता है. आज वो अनमैरिड मैरिज करने का भाव कर सकता है, और मैरिज वाला व्यक्ति दीक्षा लेने का भाव कर सकता है. भाव एंड एक्शन बोथ आर द सेपरेट प्लेस. सो द रिजल्ट इज अ मैकेनिकल एंड एग्जाम इज यू आर फ्री. ઇન્ટેન્શન પ્યોર હોવો જોઈએ ગમે તે, जो भी है हैज पर योर गोल. as per our goal. आपके गोल के मुताबिक इंटेंशन होना चाहिए, भाव होना चाहिए, और बाह्य जीवन तो जो लेकर आए उसी के मुताबिक ही चलेगा. બરાબર.
कुदरत ने दुनिया में कोई भी जिंदे व्यक्ति को श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया है, तो और क्या कर सकते हैं बताइए? आप समझे ना? और इसीलिए मन वचन काया की बात मैं करता ही नहीं हूं। मेरे अध्यात्म विज्ञान के सत्संग में सामाजिक धार्मिक प्रश्न होते नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उत्तर देने की बात नहीं है, अस्तित्व ही नहीं होता है। नो सोशल क्वेश्चन, नो रिलीजियस क्वेश्चन, ओनली द स्पिरिचुअल क्वेश्चन ऑन अ बेस ऑफ लॉ ऑफ नेचर। और ये सत्संग सुनने वाले और कोई साधारण लोग नहीं है, इसरो नासा के साइंटिस्ट ये सुनते हैं। और मैंने इसको चैलेंज दिया है कि तुम जिस विज्ञान की बात करते हो वो रियल साइंस नहीं है। क्या नहीं है? वो रियल साइंस नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। और मैं रियल साइंस के बता, बियॉन्ड टेक्नोलॉजी है। आप साइंस का उपयोग करके लोगों के काम में आते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का रिसर्च करते हो। और मैं जो बात करता हूं वो यूनिवर्सल ट्रू साइंस है, अनचेंजेबल। आप समझे? तो इसरो नासा का साइंटिस्ट सुनते हैं। और अभी मेरा एपिसोड यूट्यूब में आ गया। अभी एक साइंटिस्ट है मितुल त्रिवेदी करके, उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। अभी इसरो नासा में विश्व के 15 कंट्री में वो काम करते हैं, तो उनका भी मेरे साथ बातचीत हो रहा है। तो कहने का मतलब ये, दुनिया के हर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं धर्म संप्रदाय की बात करता हूँ। मैंने पहले भी कहा मेरी बात धार्मिक और सांप्रदायिक या सामाजिक से ऊपर है। क्या बताया? और इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट को छेड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। और उसमें जो कुछ भी हो रहा है बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट ऑल आर करेक्ट। तो इसीलिए वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं उसमें डिस्कशन नहीं करता हूँ। कोई कहता है मैं राम को मानूं, कोई कहता है कृष्ण को मानूं, कोई कहता है महावीर को मानूं, कोई कहे शिव को मानूं, कोई कहे स्वामीनारायण। जिसको मानना है मानो, मगर एक बात ध्यान रखना कि हिंदुस्तान के अंदर इतने सारे धर्मगुरु आए और सभी धर्मगुरु ने यही सिखाया कि पत्थर के अंदर परमात्मा है, मगर यह सिखाना अभी बाकी है कि जिंदे व्यक्तियों के अंदर परमात्मा है। वो सिखाना अभी धर्मगुरुओं को बाकी है, और मैं वो सिखाना चाहता हूं कि जिंदे व्यक्तियों के अंदर परमात्मा है। आप भले पत्थर की मूर्ति के पास जाओ, मैं विरोधी नहीं हूं, मगर जिंदे मूर्ति के अंदर खुद लाइव परमात्मा है। ये माना हुआ परमात्मा, आज मानो कल न भी मानो, मगर यहां तुम नहीं मानोगे तो भी है। नहीं मानते वो आपकी अज्ञानता है, मगर यहां तो है। अगर ये परमात्मा नहीं है तो आपका अस्तित्व भी नहीं है। आप समझे ना? तो ये बात है। और कोई प्रश्न करना है? और कुछ सूझेगा तो फिर बहन जी को प्रश्न करना है, प्लीज। जिसको करना है शांति से कीजिए प्लीज। लाइफ के जो 5 एलिमेंट्स हैं, नजदीक रखो, आवाज आए नहीं, नजदीक रखो मतलब। हाँ। 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ हैं, वो पता था, जैसे पृथ्वी, आकाश, जल, वायु तत्व। आप 6 बोल रहे हैं, तो वो मतलब थोड़ा अलग साइंस लगा मुझे सुनने में। यस, मैं क्लियर कर दूं। मैंने अभी कहा ना वो साइंटिस्ट को मिला था, तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल साइंस एंड भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान में अंतर क्या है? वो मेरा सब सत्संग रिकॉर्ड में है, यूट्यूब में भी है और टीवी पे भी आ गया है। तो उन्होंने मेरे को प्रश्न किया था कि आप भी साइंस की बात करते हो और हम भौतिक विज्ञानी भी साइंस की बात करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस? ये दोनों में अंतर क्या है? आखिर दुनिया में साइंस तो 2 प्रकार के हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं? नहीं। रिलेटिव सत्य अलग प्रकार के हो सकते हैं, सनातन सत्य 2 प्रकार के नहीं हो सकते हैं। तो आप कौन से साइंस की बात करते हो और हम कौन से साइंस की बात करते हैं? डिफरेंस क्या है बताइए। तो मैंने कहा तुम जो 5 तत्वों की बात करते हैं, जड़, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस, वो 5 तत्व की बात करते हैं। 5 तत्व तो मेरे पास भी वही है, मैं स्वीकार करता हूं, मगर मेरे पास 5 तत्व के अलावा आत्मा तत्व है। अगर आत्मा नहीं है तो जगत है ही नहीं। क्या नहीं है? जगत। चेतन नहीं है तो फील कौन करेगा? ये इसको फील कर सकता है? कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? ये भी जड़, ये भी जड़, ये भी जड़, अंदर चेतन है तभी तो फील होगा ना। तो स्पिरिचुअल साइंस वो 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है और भौतिक साइंस 5 तत्वों के ऊपर आधारित। बस अगर आपने 5 तत्वों को स्वीकार किया तो आप भौतिक विज्ञानी है। अगर 6 तत्व समझ में आ गया तो आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। समझ में आया?
सरस है, समझ में आया? हाँ, इतना ही डिफरेंस है। तो उसमें से कहीं गलत है? स्पिरिचुअल इज ग्रेटर। तो 5 तत्व वही के वही है, यहाँ भी वही है। जो आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, अरे भौतिक विज्ञानी कहते हैं ना, वही 5 तत्व की हम बात करते हैं, और कोई नए तत्व नहीं है। विज्ञान में 2 प्रकार हो नहीं सकते, और जो 2 प्रकार है तो हम ये रिलेटिव सत्य है। क्या है? सनातन सत्य में ऑप्शन नहीं होता है, एक्सेप्ट और नॉट, स्वीकारो या ना स्वीकारो। मैंने कहा ये आध्यात्म विज्ञान की जो बात करता हूँ, जो कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, वो बात दुनिया के हर व्यक्ति को अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो आज नहीं तो कल स्वीकारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और रामकृष्ण महावीर ने पहले ये स्वीकार किया था, अनुभव किया था, उसके बाद वितराग बने। ये विज्ञान जाने बिना कोई भी व्यक्ति वितराग हो ही नहीं सकता। क्या बताया? हो ही नहीं सकता। और कई लोग कहते हैं कि मैंने शुद्धात्मा पर प्राप्त कर लिया, या तो मैं आत्मा को जानता हूं। आत्मा जानने से कुछ नहीं होगा। ये आत्मा शब्द तो मैंने कहीं अवतारों से जाना है, और दादा भगवान ने खुद कहा था, मैं ऋषभदेव भगवान के समय भी था, उसके बाद 10 लाख साल हो गया। मैं दादा भगवान की बात करता हूं। तो आत्मा शब्द तो वही भी जाना था, तो फिर इतने साल क्यों हुए? आप समझो। इसीलिए शब्द ज्ञान की जरूरत नहीं थी, ये सनातन सत्य कुदरती कानून की जरूरत थी। हम आत्मा में नहीं बंधे हुए हैं, हम दुनिया में फंसे हुए हैं, और दुनिया में इसीलिए फंसे क्योंकि हमारे में अज्ञान है। किसका अज्ञान है? ये दुनिया कैसे चलती है उसका सनातन सत्य नहीं मालूम, ये अज्ञान है। मैं आत्मा हूं, वो तो हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को मालूम है कि नहीं? धर्म कोई भी है, मालूम तो सबको है कि मैं आत्मा हूं, भले अनुभव नहीं है किसी को, मगर मालूम तो है ना। दे हैव अ नॉलेज फ्रॉम स्क्रिप्चर और गुरु। मगर क्या नहीं मालूम है? ये दुनिया कैसे चलती है, और नहीं जानते तभी तो राग द्वेष करते हैं। अगर जानेंगे तो राग द्वेष क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? जब मैंने कहा कि मेरा मनोवचन काया है, वो भी कुदरती रचना है, आपका मनोवचन का है, वो भी कुदरती रचना है, ये सबके मनोवचन काया, वो भी कुदरती रचना है, तो फिर राग द्वेष करने की जरूरत क्या है? जब रचना ही कुदरत की है तो फिर, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? और ये नहीं जानोगे तो राग द्वेष नहीं होगा, वो पॉसिबल भी नहीं है। कोई कहेंगे मेरे को राग द्वेष नहीं होता है, वो पॉसिबल नहीं है। वो शांत हो सकता है, मगर अंदर तो राग द्वेष होगा ही, क्योंकि उसको सिद्धांत मालूम नहीं है। तो अहंकार स्वीकार नहीं करता है अवस्था को। क्या नहीं करता है? कि एक न एक व्यक्ति हमको 10 बार गलती करेंगे, 20 बार गलती करेंगे एक ही प्रकार की, फिर बुद्धि क्या कहेगी? ये जानबूझ के करता है, अपने को परेशान करने के लिए करता है। आप समझे? ये उनके पास होगा। समझ में आया? क्योंकि उनके पास विज्ञान नहीं है। अगर विज्ञान होता है, सनातन सत्य का ज्ञान होता है, लॉ ऑफ नेचर का ज्ञान होता है, तो एक व्यक्ति 1000 बार भी अपमान करेंगे तो अभी कुदरती रचना। मेरा मनोवचन का है भी कुदरती रचना, सुनने वाला और बोलने वाले का मनोवचन का है भी कुदरती रचना, लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक काम करता है। तो फिर राग द्वेष करने की मेरी दृष्टि से क्या जरूरत है जरूरत? जब मेरी दृष्टि में मालूम है कि ये मनोवचन काया कुदरती रचना है, जो अपमान सहन करता है, और जो व्यक्ति अपमान करता है उनका मनोवचन काया भी कुदरती रचना है, वो मेरी दृष्टि में, तो क्या मेरी दृष्टि में राग द्वेष होगा? बस यही तो विज्ञान है। इसमें मैंने कोई भगवान की बात कही, कोई गुरु की बात करी, कोई मंदिर की बात किया, कोई मंत्र की बात किया, कोई क्रियाकांड की बात कहा, कोई संस्था की बात की, और जरूरत भी है। अज्ञान मिटाने की जरूरत है, और अज्ञान मिटाने के लिए ज्ञान की नहीं, विज्ञान की जरूरत है। और विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य, और ज्ञान का मतलब होता है व्यवहार सत्य। सबका ज्ञान अलग अलग है। क्या है? एक कहता है मैं राम को फॉलो करूं, एक कहता है कृष्ण को, एक कहता है महावीर को, एक कहता है शिव को, एक कहता है स्वामीनारायण को फॉलो करूं। तो रिलेटिव सत्य तो अलग अलग होता है, मगर सनातन सत्य तो एक ही होता है। और इसीलिए जब कुदरती कानून की बात करूंगा तो उसमें ड्युअलिटी नहीं रहेगी। समझ में आया बहन जी? ओके, समझ में आना चाहिए। बस ये विज्ञान है, और इसीलिए मैंने कहा ना कि ये विज्ञान जितना भी दुनिया के, मेरे को इतना विश्वास है विज्ञान के ऊपर, ये शरीर के ऊपर नहीं, विज्ञान के ऊपर विश्वास है कि आज नहीं तो कल विश्व के करोड़ों लोग, विश्व की बात करता हूं मैं, भारत की बात नहीं करता हूं, विश्व के करोड़ों लोग ये विज्ञान को समझने के लिए तत्पर रहेंगे इन फ्यूचर। क्योंकि यह विज्ञान वास्तव में निष्पक्षपाती है, जो फॉर्मेट से बियॉन्ड है। जो फॉर्मेट की बात करेंगे वो निष्पक्षपाती कैसे हो सकता है? एम आई राइट और रॉन्ग? आप कोई भी फॉर्मेट की बात करेंगे वो निष्पक्षपाती कैसे हो सकता है? बताओ मेरे को।
तो विज्ञान ऐसा है जो वास्तव में निष्पक्षपाती है, बियॉन्ड फॉर्मेट। और इसीलिए विश्व को एक आज नहीं तो कल ये बात समझनी ही पड़ेगी, स्वीकारनी ही पड़ेगी, सिर्फ उनकी उन्नति के लिए और किसी के लिए नहीं। उनकी भलाई के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए सुनना है और किसी की भलाई के लिए स्वीकारना नहीं है। और मैंने कहा, मेरे को बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी आध्यात्म विज्ञान आपका है। मैंने कहा मेरा नहीं है, दुनिया की कोई व्यक्ति का भी नहीं है। ये कुदरत का विज्ञान है, था और रहेगा। इसका अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम उसका क्रिएटर नहीं बन सकते हैं, हम इसका ओनर नहीं बन सकते हैं। आप समझे ना? और इसीलिए मैंने कहा ये कुदरत का, ये आध्यात्म विज्ञान, ये सनातन सत्य है, ये मेरा सत्य नहीं है। ये सनातन सत्य का जो मेरा अनुभव है दर्शन के रूप में, वो आपके सामने पेश करता हूँ। मगर विज्ञान तो मैं पैदा नहीं होता उससे पहले भी था और बाद में भी रहेगा। इसीलिए मेरा विज्ञान है, वो प्रश्न है नहीं। सो आई एम नॉट क्रिएटर ऑफ द स्पिरिचुअल साइंस, द साइंस इज देयर, आई जस्ट डिस्कवर एंड रियलाइज इट, दैट्स इट। मैंने अनुभव किया है और वो अनुभव आपको शेयर करता हूँ, मैं सेल नहीं करता हूँ। मैंने कहा ये विश्व में कुछ देने के लिए आया हूँ, कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ। और मेरे पास आज बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं देश में विदेश में, कहता है कि स्वामी जी आप यहाँ जमीन पड़ी है 5-10 बीघा 15 बीघा, विदेशों में भी आप वहाँ कुछ मंदिर बनाओ, संस्था बनाओ। तब मैंने साफ बोल दिया, मैं पत्थर के मंदिरों को बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जिंदे व्यक्तियों के अंदर परमात्मा प्रकट करने के लिए आया हूँ। और ये मेरा सेंटेंस विश्व के न्यूज़पेपर में टाइटल न्यूज़ बने। टाइटल न्यूज़ समझते हैं ना? टाइटल न्यूज़ ऐसा कोई बोल नहीं सकता है ना। जिसकी नीति और नीयत साफ है उनके साथ हर रोज हर समय कुदरत होती ही है। आप समझे ना? और इसीलिए मेरे को कुदरत को विनती करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरी नीति और नीयत साफ है, ऑलवेज द नेचर विल विथ अस। आप समझे? और कई लोग मेरे को कहते हैं, अरविंद भाई, कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी आप अकेले क्या कर सकते हैं विश्व के अंदर? आप कहते हैं कि मेरे को पूरे दुनिया के अंदर आध्यात्म विज्ञान को फैलाना है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो मैंने बोला क्यों नहीं पॉसिबल है? राम भी अकेले थे, कृष्ण भी अकेले थे, महावीर भी अकेले थे, मैं भी अकेला हूं। एक व्यक्ति क्या कर सकता है? उसका तो पूरा इतिहास है कि नहीं? और इसीलिए अकेला होना वो कोई कमजोरी नहीं है, वही तो साहस है और वही तो सुरवीरता है। तो अकेला होना कोई निर्बलता नहीं है, मगर अकेले के साथ नियत और नीति होनी चाहिए और आत्मविश्वास भी होना चाहिए, तो कुछ भी संभव है। कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। मगर मैंने पहले भी कहा नीति और नियत, मैंने पहले भी कहा मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मैं दुनिया में कुछ देने के लिए आया हूं, कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं। इसीलिए मेरा सेंटेंस है, आई शेयर माई एक्सपीरियंस बट नॉट टू सेल। मैं बेचने के लिए नहीं आया हूं, बांटने के लिए आया हूं। दैट इज द मिशन ऑफ माई लाइफ। और आज हजारों लोग, और अभी धीरे धीरे जिस प्रकार से मैंने कहा, कई लोग मेरे को प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी आपके फॉलोअर्स कितने हैं, ऐसा मेरे को प्रश्न करते हैं। तो मैंने कहा मैं कभी फॉलोअर्स नहीं बनाता हूं, आई एम अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, और मैं साइंटिस्ट बनाने के लिए आया हूं। मैं किसी को फॉलोअर्स नहीं बनाता हूं और मैं किसी को हैंडी पे कैप बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं उनके सामर्थ्य को जगाने के लिए आया हूं। जो उसके अंदर है, मेरे अंदर नहीं, उसके अंदर भी है वही सामर्थ्य, इसको जगाने के लिए आया हूं। मैं उसको हैंडीकैप करने के लिए नहीं आया हूं, चलो भी आप शिष्य बन जाओ, मैं कहूं वो करो, ऐसा मैं उसको पालतू बनाना के लिए नहीं आया हूं। तो मेरा सब्जेक्ट ही अलग है। और आज धीरे धीरे 50-50 करके साइंटिस्ट एवरी 3 मंथ्स बन रहे हैं, एवरी 3 मंथ्स स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन रहे हैं, और वो सर्टिफाइड, और वो दुनिया में जाके आध्यात्म विज्ञान की बात अपने अनुभव की करेंगे, मेरे अनुभव की नहीं करेंगे। बिकॉज ही इज इक्वलेंट एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, नॉट एज अ फॉलोअर्स और नॉट एज अ डिसाइपल्स। आप समझे ना? तो ये मेरा मिशन है, और मिशन में बहुत सारे लोगों की हेल्प है, बहुत सारे लोगों की हेल्प है, और अपने आप आती रहती है, काम रुकता नहीं है। तो इसीलिए कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी ऐसा ऐसा धीरे धीरे क्यों होता है? मैंने बोला जल्दी करने की जरूरत भी क्या है? जब राम और कृष्ण जीवित थे, जब राम और कृष्ण जीवित थे, कभी उन्होंने 25 व्यक्तियों के सामने प्रवचन नहीं किया है। यू चेक द होल हिस्ट्री। मगर आज
करोड़ों लोग इसको मानते हैं। क्यों? उनकी बात में सच्चाई थी। तो आज आपकी बात में सच्चाई है तो कल क्यों नहीं मानेंगे? ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न मानने वाले का है, मेरा नहीं है। मेरा तो आत्मविश्वास है कि दुनिया के हर व्यक्ति को आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए और दुनिया का सनातन सत्य समझने के लिए यह आध्यात्म विज्ञान समझना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। यह मेरा विश्वास है, और इसीलिए मेरी हर बातों में, हर सेंटेंस में कॉन्फिडेंस होता है। क्या होता है? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होता है। मैं ऐसा डर के घबराते घबराते कोई भी सेंटेंस का यूज नहीं करता हूं। जय सच्चिदानंद। बहुत और समय